ओके। तो पेपर से टास्क होते हैं। Assalamualaikum everyone. Please take out your report writing booklets. We are going to resume from where we had stopped last time. I have already shared with you the plan for the session today. We are going to move on. Inshallah ta'ala, we are going to cover a variety Recording of, in progress. as well as we are going to look at the formats. Formats we are going to do in a while, starting from one of the most easiest structures first. Let me open the booklet here for you. Give me a moment. Chats will be enabled in a while. पहले हम थोड़ा काम कर लें. Okay, I'm opening the book here. It is the second lesson of report writing, taking you to the index first to let you know how much have we already covered and what are we up to today. Now I'm sharing screen and now we are starting. Let's not waste any further time. Acha ji. So if you look in your book, what have I already completed with you in the previous session? Let me highlight it over here for you. So we are done with syllabus, done with subject content, done with assessment objectives, done with mark distribution in the previous classes. My plan is to work on these elements today. Let's see how much of these pointers can we will be able to cover today. Formats I'm going to do in the middle of the lessons. In the middle of the lesson, let me start with the grammar topic first, which you usually find, which anybody would find difficult. Acha, the good part about report writing is if you have done formal letter with me, the best part about report is all the structural variety for report is the same as for formal letters. Okay? So you have already done transitional words with me in our formal letter booklet. The same we'll have to cover in report writing. In your report writing, you may turn to page number 9 and start copying out these notes. Page number 9, formal letter book, transitional words. Copy out your notes. I'm explaining the same thing. So we use transitional words in our report writing as well. What do they do? Follow my yellow pointer. So they show a shift in the idea. What do transitional words do? Since you are going to be writing report in several paragraphs, they show a shift in the idea. If you look up for the topic over the internet, the same grammar point is also called discourse marker. Why do we call it discourse marker? Obviously, because you are connecting pointers. Acha, give me a moment. I'll continue in one moment. आप लिखो इसको. Just a minute. Just a moment. Resuming in a second.
एक सेकेंड रुकिए, आप कॉपी करें इसको मीनवाइल। चले, resuming now. So I was trying to explain this point that they are also called discourse markers. Why? What is discourse? Any kind of communication, beta. जो लिखा हुआ है वो written communication, जो verbal होता है oral communication, oral discourse, written discourse. किसी के अंदर भी हम transitional words use करते हैं, बात करते हुए भी तो हम किसी से कहते हैं ना, when you are talking to your friends तब भी तो हम कहते हैं importantly, particularly या initially या we use words like lastly and next, तो हम ये हर वक्त ही use करते हैं, right? They are also called conjunctive adverbs. Why? Because they connect paragraphs together. Why conjunction? You have learned it in your primary classes. Conjunctions क्या होते हैं? And की जगह we have add. Then we have conjunction very common but की जगह contrast words. Then we have a very common conjunction so की जगह result के words. Why do we call it also adverbs? You see, most of these end with ly words. I'm now using purple pointer to show you what do I mean by ly. See, initially, primarily, firstly, particularly, importantly, precisely, notably. So most of these end with ly. That is why these are also called transitional words. I'm zooming out a little. Copy out your notes. I'll be now using a red pink pointer to tell you to begin with and firstly mean the same thing. Primarily and initially mean the same thing. Primarily and initially means things which were happening only in the past. Then additionally, moreover, furthermore, likewise, in fact, and similarly, they all mean the same thing. So they are synonyms. To give example may for an instance and particularly mean the same thing. Sequence के all words are different. Earlier is a different time zone. Now is a different time. Later एक different time को show करता है. Next एक different time sequence को show करता है. ठीक है? Stress के all words are same. Even if you can remember two words from the stress row, it will be enough. Then to show result, as a result, hence, eventually, therefore, and thus, they all mean the same thing. Conclusion में all of these words mean the same thing. You will notice one particular word, consequently. Here, note down, consequently means it only shows those results which are unfavorable. Unfavorable outcome, unfavorable results को we call consequently. Copy out these notes, beta. Report writing book we are working on, grammar topic number 1, page number 9. Discourse markers. These are words which we use to show whether we are starting or we are in the middle. Discourse mean any kind of communication, anything we are talking about. Okay, Wasim. Exactly, Taha. They are the same as we did in summaries and the same as we did in our formal letters. ये बिल्कुल same है. Transitional words formal letters में भी होते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स में भी होते हैं और समरी में भी. यूज कब करना है, कहाँ यूज करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हेन वी विल डू द फॉर्मेट. नोटेबली का मतलब वही है जिस लिस्ट में वो है, यानी कि खासकर, नोटेबली खासकर, यानी कि स्ट्रेस में. नहीं मुनीब, ज़ाहिर आईएनजी में तो ट्रांजिशनल वर्ड नहीं है ना. आप लाइकवाइज भी तो एक ट्रांजिशनल वर्ड है, उसमें तो एलवाई नहीं है ना. स्ट्रेस वर्ड्स मींस एम्फेसिस. To show stress means emphasis. Emphasize करना, किसी बात की अहमियत पे फोकस ज्यादा करना. एडिशनली के नीचे लिखा हुआ है मोर ओवर. मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ. You complete your first 3 rows and then I'll show you the rest of the notes. ठीक है? I hope it is now readable.
Solid primarily is a connector. You can say in report के पहले ये problems थे. जी ये all these all can be used in report, but we don't have to use all of these. If we can use कितनी दफा use करने वो मैं आपको format पे बताऊंगी. नहीं transitional word speech में नहीं होते बेटा. Embarrassingly is not a transitional word. We are doing this work in formal report book page number 9. अच्छा जनरली हम कितने ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करते हैं भाई? हर बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने में, पैराग्राफ के अंदर भी यूज कर सकते हो, बॉडी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में भी यूज करोगे, तो टेक्निकली हम 5 to 6 ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज कर रहे होंगे इन अवर रिपोर्ट. ठीक है बेटा? जी जी, आज टॉपिक ट्रांजिशनल वर्ड फर्स्ट ग्रामर टॉपिक से हुआ है. दिस इज पेज नंबर 9 रिपोर्ट राइटिंग अरवा. जितनी भी दफा ट्रांजिशनल वर्ड्स कराएं दे आर द सेम, मल्टीपल टॉपिक्स में यूज होते हैं. जी दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. You can use them both in the opening and in the middle of the paragraph. Okay, guys, this is 11:16 now. I hope you have copied the first 3 rows. Let me show you the rest of the notes for the same page. It's 11:16. I can be patient for 2 next minutes. Copy it out. I'll explain that in a while. I hope you are noting down the meaning for consequently. It means to show negative results or unfavorable results. It's 11:17. We'll have to move on by 11:18 on my display. Acha guys, once you are done with taking notes, please keep in mind. Dekho, try to understand one thing. I'm using a red pointer. Dekho, all of these words are correct. Those in the last column. Words about conclusion. All of these are correct. But can you kindly strike them off? Why strike them off? Because we don't use conclusion transitional words in report. देखो ना हम कहाँ conclusion लिखेंगे, हम कहाँ sum up करेंगे. Sum up means that you restate every detail. क्या होता है sum up? Your conclusion mean that you are paraphrasing everything, you are recapping everything. And we are not recapping anything in the last paragraphs. We just keep on moving on. Are you getting it? So please make sure you don't use these transitional words, those only in the last row pertaining to conclusion. It is 11:18 my side. I'm little zooming out. In case anyone has missed anything, they can have a look at it then, because this is the first page with which we have started our lesson. Transitional words, grammar topic number 1, page number 9, formal reports.
We will go to the next page now. I'm taking you now to the next page. I'm waiting for 11:20. In case you need to copy any of the remaining points, you may copy it out. Chale. Let's go to the next page. We will do gerund phrases in a while. Gerund phrase को थोड़ी देर freeze करूंगी. थोड़ी देर. I'm taking you to grammar topic number 5. Can you please go to page number 14 in your book? और बिल्कुल एज इट इज पेज रेडी कर लें. पेज 14 पूरा पेज बिल्कुल एज इट इज रेडी कर लें. इसी तरह मार्किंग कर लें. इसी तरह स्पेसिंग कर लें. It is 11:20. First complete your notes and I'll start explaining it. 11:20. ठीक है? Okay, I'm writing down the page number if you are confused. Page 14, report writing book. Copy it out on page 14, report writing book. I'll start explaining at 11:24 p.m. You have 3 minutes to complete your notes. अच्छा देखो, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ना तो पेज बहुत डर्टी हो जाएगा. I'll be scribbling a lot of things on it. So you are strongly advised कि पहले ये लिख लो. शाबाश. Note it down.
Okay, so I expect that you are done with copying these notes. It's 11:24. I'm now going to start explanation of this topic. कितनी दफा यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये सब भी I will explain. Relax. ठीक है, सबर. Okay. थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के ऊपर पहले बात करेंगे, फिर इसको टेक्निकली देखेंगे. ठीक है जी. Like I said, I'll be writing a lot of notes. तो आप देखिएगा आप क्या समझा रहे हो. देखो देखो इंग्लिश में जितने भी ग्रामर है, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स, कोई भी सेंटेंस टाइप, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंडीशनल्स एक वाहिद. फर्स्ट कंडीशनल्स हम आज टॉपिक देख रहे हैं ना. कंडीशनल्स. कंडीशनल्स इज द ओनली टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज which is named after numbers. यानी कि we have four conditionals in English language. ध्यान से समझिएगा. Zero, first, second, and third. From or of all of these, we are studying first conditional. फर्स्ट कंडीशनल. ये 1 2 3 के नाम से जो मेंशन है, तो क्या ये ऐसी रैंडम है? बिल्कुल नहीं. जैसा कि नेम अप्लाई करता है, कंडीशनल. सो सिंस जीरो, सेकंड एंड थर्ड हमारे टॉपिक नहीं है, आई कैन गो इनटू इट्स डिटेल. जैसे थर्ड वाला हमें यूज करना चाहिए इनफॉर्मल लेटर में, तो ये इनफॉर्मल लेटर में समझाया हुआ है. इफ आई गो बैक टू दोज डिटेल्स, एक तो मिक्सअप होगा और दूसरा वी विल बी ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक. ठीक है. तो आई थिंक आई डू जीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल. जीरो को मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ और एक्सप्लेन करूंगी फर्स्ट कंडीशनल, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूज इन आवर रिपोर्ट्स एंड इन आवर फॉर्मल लेटर्स. जीरो का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, सो यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी कॉल इट जीरो. जीरो कंडीशनल कहता है कि, एग्जाम्पल लिखूंगे आप समझोगे. जीरो कंडीशनल कहता है भाई के इफ यू हीट वाटर, comma, it boils. यानी कि इसके ऊपर जीरो कंडीशन है. इफ तो वैसे अगर को कहते हैं, कंडीशन लगा दी अगर, लेकिन कितनी कंडीशन है? एकदम जीरो. इस पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, बिकॉज दीज आर फैक्ट्स. ऑल फैक्ट्स आर जीरो कंडीशन. ऑल फैक्ट्स आर जीरो कंडीशन. उन पे कोई ये नहीं हो सकता कि अगर मैं ऐसा करूं तो, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर हम ऐसा ना करते तो. जैसे कि थर्ड कंडीशनल रिग्रेट को कहते हैं. अम्मी अपने बच्चों को कहती है ना, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हें ये नुकसान नहीं होता. तो दैट इज थर्ड कंडीशनल. उसका ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है. वो हम इनफॉर्मल लेटर्स या ईमेल्स में यूज करते हैं. ठीक है. तो जीरो कंडीशनल जिसमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिपोर्ट्स. इट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर. सिर्फ जीरो का मतलब बताई थी कि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, वो 100% हमेशा ऐसे ही होगा. सिंस अवर टॉपिक इज फर्स्ट कंडीशनल, तो हम देखेंगे एक कंडीशन, एक कंडीशन वाले सेंटेंसेस. एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है फर्स्ट कंडीशन का. ठीक है. एक सिंपल सा सेंटेंस है कि भाई ये है अली और ये है अब्दुल्ला. ठीक है. सो अली और अब्दुल्ला ने आपस में बात की कि अगर, सबसे जस्ट अज्यूम करो कि ये ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही, ये ऑन कैंपस क्लास हो रही है, जिसको टीचर ने कहा है कि मैं 12:30 पे ही ऑफ करूंगी. ठीक है. सपोज करो अभी हम कैंपस में होते, तो अली ने अब्दुल्ला से कहा, अगर क्लास जल्दी खत्म हुई, अगर क्लास जल्दी खत्म हुई, वी विल, तो सॉरी रोमन में लिखना था. अगर क्लास जल्दी खत्म हुई, कामा, हम हम आइसक्रीम खाने जाएंगे. सामने जो आइसक्रीम पार्लर है, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे. ठीक है. अच्छे बच्चे हैं अब्दुल्ला और अली, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे. तो इन्होंने एक कंडीशन लगाई कि अगर क्लास जल्दी खत्म हुई तो ही उनको लगता है कि वो आइसक्रीम खाने फॉर एग्जाम्पल जा सकते हैं. तो एक कंडीशन लगाई ना, इसको फर्स्ट कंडीशनल्स कहते हैं. मैं इसको अभी एकेडमिकली बताऊंगी, पहले थोड़ा सा इजी वर्जन समझा दूं. अब इसको लिखा कैसे? अगर की जगह क्या आ जाएगा? इफ. अगर क्लास जल्दी खत्म हुई, इफ आर क्लास जल्दी खत्म हुई, कौन सा टेंस है? अगर ऐसा हो गया तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस.
if our class gets off early today, अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे? We will go for ice cream. We will go for ice cream. तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ प्रेजेंट टेंस में, तो फ्यूचर में हम कहाँ कर जा रहे होंगे? फ्यूचर में we will go for tea या फिर फ्यूचर में we will go for ice cream. ये तुमने एक कंडीशन लगाई, अगर ऐसा हो गया तो। या अगर क्लास जल्दी खत्म नहीं हुई तो भाई मैं तो अगली क्लास में नहीं आऊंगा। हम फ्रेंड्स में ऐसे भी कहते हैं, अगर क्लास बहुत देर तक हुई मैं अगली क्लास में नहीं आ रहा। सो यू इवन टॉक अबाउट व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये एक फर्स्ट कंडीशनल की एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेट्स लुक एट मोर एग्जाम्पल्स। अब पेपर में अली और अब्दुल्ला तो नहीं आ रहे ना, ये तो रिपोर्ट है और हाईली फॉर्मल होती है रिपोर्ट्स। तो हाईली फॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए अब ये थोड़ा सा इरेज किया जा रहा है, ठीक है, और आपको लेकर आया जा रहा है ऑन हाईली फॉर्मल डिटेल्स। गिव मी अ मोमेंट। सब चीजें ऐसी ही रहेंगी, यू विल सी। एक ही कंडीशन, एक साइड प्रेजेंट टेंस, एक साइड फ्यूचर टेंस। अब एक थोड़ा सा आपको फॉर्मल एग्जाम्पल बताऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट इट। फिर आपको बताऊंगी हाउ मेनी टाइम्स यू शुड राइट इट इन रिपोर्ट। रुक जाइएगा, ठीक है। अब एक थोड़ी सी फॉर्मल एग्जाम्पल वील सी। हम सपोज कर रहे हैं स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स आर नॉट टू गुड। हम अज्यूम कर रहे हैं स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आर नॉट टू गुड, are not too good. So you are upset and you are launching a complaint. You are writing a report to suggest school कि भाई they should upgrade their sports paraphernalia. तो तुमने स्कूल को एक सजेशन दिया। कैसे दिया? If school upgrades sport equipments, क्या होगा अगर स्कूल अपने स्पोर्ट्स को अच्छा कर ले? If school upgrades sport equipments, many students, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ। I'll just go for the tiny version ताकि मैं पूरी इस पे ग्रामर लिखूं। एक मिनट, everything will remain the same except for the font size. Just a moment. Just a moment. I'm writing it again, okay? If school upgrades sports equipments, comma, बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स प्ले करने लगेंगे। अगर स्कूल स्पोर्ट्स अच्छे इक्विपमेंट कर ले तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने लगेंगे, ठीक है। Many students will start participating in sports events. तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने लगेंगे। हमने एक फर्स्ट कंडीशनल लिखा है। हमने किस तरह फर्स्ट कंडीशनल लिखा है? हमने सबसे पहले इसको डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट, पार्ट टू, ये हमने लगाई है कंडीशन। और यहां हमने लिख दिया कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, अगर स्कूल ने अपने स्पोर्ट्स को अच्छा कर लिया, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो फिर हमने दूसरी साइड पर लिख दिया उसका रिजल्ट। थोड़ा सा स्क्रीन क्लीन कर रही हूँ, सही है। तो हमने लिखा एक साइड पे कंडीशन और एक साइड पे लिखा रिजल्ट। ये होता है फर्स्ट कंडीशनल। एक कंडीशन लगाई हमने, एक कंडीशन। क्या लगाई कंडीशन? कि स्कूल अपग्रेड करे इक्विपमेंट तो मेनी स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट। लेकिन भाई इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स भी समझनी पड़ेंगी कि इसको लिखना कैसे होगा पेपर में। तो यू विल बिगिन इट विथ इफ, with the word if, and then you will add subject कि वो काम करना किसको है। सब्जेक्ट यानी डूअर, करना किसको है? को किसको करना है? स्कूल को करना है। फिर करना क्या है? वर्ब। वो किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस। अगर स्कूल फॉरन से अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ठीक कर ले। कैसे था हमने लिखा प्रेजेंट टेंस? आपको एस नजर आ रहा है? इफ स्कूल अपग्रेड्स स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, तो हमने लिखा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस। फिर हमने एंटर किया पंक्चुएशन मार्क, कॉमा,
अगर स्कूल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ठीक कर तो रिजल्ट क्या होगा? बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट शो करेंगे। तो करेगा कौन? अब सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट को यानी कि डूअर को फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा? तो हमने लिखा स्टूडेंट्स, और फ्यूचर टेंस में हमने लिखा विल। Students will start participating in sports. Your students' interest in sports will spark. Your students will start becoming more active on the field. बस ये है कहानी। बस इसको कहते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल्स। थोड़ी सी और चीजें ऐड कर रही हूँ, कलर्स चेंज कर रही हूँ। अच्छा, और थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल सुनो। ये पूरा पार्ट जो इफ से हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं इफ क्लॉज। एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो इफ से लिखा हुआ है, और कॉमा के बाद पूरी पार्ट को हम कहते हैं मेन क्लॉज। अब अगर तुम YouTube से कोई टॉपिक पढ़ो और तुम्हें ये सब चीजें लिखी हुई नजर आए, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खुद भी ये बात बता दूं। तो एक्चुअली टेक्निकली हम इसको कहते हैं इफ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज। और नॉन टेक्निकली इफ आई हैव टू टीच दिस टू छोटे बच्चों को, तो मैं कहूंगी एक कंडीशन और एक रिजल्ट लिख दो। दिस इज व्हाट वी कॉल इज फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, अब इसके नोट्स के हिसाब से हम एक्सप्लेनिंग इट। ओके, यहाँ आ जाते हैं। So it says here first conditionals are used to express एक future possibility, यानी कि future result। first condition से हम express करते हैं future result। if word को जैसे मैंने लिखा ना, if school, if की जगह, if के जगह you can also write down only if या when। यानी कि look at this sentence guys, this sentence, purple color। अगर मैं लिखूं if की जगह only if school upgrades sports equipment, comma, many students will start participating in sports event. Yeah, only if की जगह if I do it with when. When school upgrades sports equipment, students start showing interest. तो ज़्यादा appropriate only if grammar fracture नजर आएगा in some cases. तो बेहतर option is you opt for if या only if। लिखने का तरीका अभी आपको बताया बेटा कि हाउ डू वी स्टार्ट इट। इफ, फिर डूअर, फिर वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, बीच में कॉमा, फिर सब्जेक्ट और फ्यूचर टेंस। द फर्स्ट पार्ट बिफोर कॉमा इज कॉल्ड इफ क्लॉज, द पार्ट आफ्टर कॉमा इज कॉल्ड मेन क्लॉज। छोटे बच्चों को अगर हम पढ़ाते, अगर मैं आपको ग्रेड 3 में पढ़ाती, तो आई वुड हैव सेड कि दिस इज अ कंडीशन, वन कंडीशन followed by one result. This is what first conditional is. कितनी दफा यूज करना है भाई? अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, ठीक है, रूब्रिक नंबर 2 में ही सिर्फ यूज होगा ना, क्योंकि रूब्रिक 2 में एग्जामिनर आपसे आपके सजेशंस पूछता है, आपका ओपिनियन पूछता है, या किसी बात का एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछता है। तो रूब्रिक नंबर 2 हम किन दो पैराग्राफ्स में लिखता है बेटा? पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4। तो एक फर्स्ट कंडीशनल पैरा 3 में बना दीजिए, एक फर्स्ट कंडीशनल पैरा 4 में बना दीजिए। बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करिएगा। मैं जब आपको इसके सैंपल्स कराऊंगी तो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर इंशाल्लाह। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इफ कंसर्न डिपार्टमेंट टेक नेसेसरी मेजर्स, सपोज करो हम लिख रहे हैं रिपोर्ट अबाउट ट्रैफिक सिचुएशन। कि भाई इतना ग्रिड लॉग है, इतना ट्रैफिक जैम है, इतना पॉल्यूटेड है, या रोड की कंडीशंस इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी है, उस पे अगर वी मेक फर्स्ट कंडीशनल के इफ कंसर्न डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये इसको वर्ब ठीक करना, टेक्स करो। सिंगुलर है ना डिपार्टमेंट, तो प्लूरल होता है वर्ब। ठीक है, तो ये प्लीज ये ठीक करेगा। सो नाउ इट इज इफ कंसर्न डिपार्टमेंट टेक्स नेसेसरी मेजर्स, वो लोग जो जिम्मेदार हैं अगर वो नेसेसरी मेजर्स ले लें, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए नेसेसरी मेजर्स ले लें, तो क्या होगा कि ट्रैफिक का पूरा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। यही बात लिख रही हूँ। इफ कंसर्न डिपार्टमेंट टेक्स नेसेसरी मेजर्स, most of most of traffic issues
will mitigate. बहुत से ट्रैफिक के मसले मिटिगेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो देखिए, I have used here a future tense. यहाँ I have used present tense. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? डिपार्टमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ट्रैफिक इश्यूज कम हो जाएंगे। सेंटेंस स्टार्ट किया है मैंने इफ से, कॉपी कर लें। Then we will go to the second sentence. I am keeping it slow paced. $11:40 हो रहे हैं। You can take time up to 11:41. Don't worry, मैं अभी थोड़ी देर में chat enable करूंगी, रुक जाए। ठीक है, 11:41। अब हम ये पॉइंट नंबर 2 का सिचुएशन अज्यूम करते हैं। एक सिचुएशन बना रही हूँ, ठीक है? ये आपकी रिपोर्ट की बुक्स में आएगा भी। उसके अंदर एक टॉपिक है कि स्कूल, ये पूरा सिचुएशन लिख रही हूँ यहाँ बॉक्स के सर्कल के अंदर। उसमें टॉपिक कुछ इस तरह है कि स्कूल के अंदर एक चैरिटी चैरिटी फंड रेजर हुआ, एक फंड रेजर हुआ, और उसके अंदर कुछ आउटसाइडर्स आए, और आउटसाइडर्स ने देखा कि स्कूल ने तो बड़ा लैविश सा फंड रेजर किए, बड़े अच्छा अच्छा फूड सर्व कर दिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को इनवाइट कर दिया, बड़ा चैरिटी के बजाय वो तो कोई ग्लैमरस सा इवेंट लग रहा है। तो कुछ आउटसाइडर्स जो है बड़ा स्कूल की रेपुटेशन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये स्कूल क्या कर रहा है, ये चैरिटी फंड है या ये कोई एंटरटेनमेंट शो है। ऐसा एक टॉपिक हमारी रिपोर्ट राइटिंग बुकलेट के अंदर भी है, टॉपिक नंबर 5, वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, उस सिचुएशन को माइंड में रखते हैं कि इफ द उसके अंदर मैंने आपसे कहा ना, आउटसाइडर्स आके बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि स्कूल ने चैरिटी के अंदर इतना ओवर स्पेंडिंग क्यों कर दिया, ये तो चैरिटी और ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर का कोई काम ही नहीं लग रहा, ऐसे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो उस पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इफ द स्कूल डज नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स रेप्यूटेशन। अगर स्कूल नहीं चाहता कि कोई उसको बुरा कहे, तो नेक्स्ट टाइम इवेंट में हमने क्या ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम इवेंट पे, ताकि कोई स्कूल की रेप्यूटेशन को स्टिग्मेटाइज ना करे। तो हम लिख देंगे कि कोई सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कि भाई हम ट्रू बेनिफिशरीज को बुलाए ना, बजाय हम बहुत ही रिनाउंड, क्योंकि उस टॉपिक में लिखा हुआ है कि स्कूल ने बहुत ही सेलिब्रिटीज, टीवी सेलिब्रिटीज को बुला लिया, बजाय उन लोगों को बुलाने के जिनको हैंड ओवर करनी थी चैरिटी, जिनको वो पैसे देने चाहिए थे। स्कूल ने सेलिब्रिटीज को, सिटी के मेयर को बुला लिया। तो यू नो टॉपिक में लिखा हुआ है कि आउटसाइडर्स जो है बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये कैसा इवेंट है, क्या हमने इसके लिए चैरिटी दिया था। हाँ, ये वाली पूरी सिचुएशन माइंड में रख के वी आर मेकिंग अ फर्स्ट कंडीशनल, कि एक कंडीशन बता रहे हैं स्कूल को कि अगर स्कूल अपनी रेपुटेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, इफ द स्कूल डज नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स रेपुटेशन, इट मे only invite true beneficiaries। विल को मैंने चेंज किया मे से, आप विल की जगह मे, शुड भी लिख सकते हो। इट शुड ओनली इनवाइट, या इट विल नहीं लगेगा, देन विल से सेंटेंस नहीं बन रहा ना। अब देखो ना, इफ द स्कूल डज नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट रेप्यूटेशन, स्कूल विल ओनली इनवाइट, ऐसा तो नहीं ना, आप तो सजेशन दे रहे हो। स्कूल को चाहिए कि वो फ्यूचर में, विल और शुड और मे क्या होता है, फ्यूचर वर्ड्स हैं, कि यू मे डू इट, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, शुड तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। हम किसी को एडवाइस देते हैं कि उनको फ्यूचर में कैसे करना चाहिए, तो वी कैन यूज वर्ड्स लाइक मे, विल, शुड। मस्ट भी कह सकते हैं। कुड नहीं लिखना, बस कुड मत लिखना, क्योंकि could is not future, could is a past tense। can लिख सकते हैं, स्कूल it can and only invite true beneficiaries। तो ये ideas you can pick from। कॉपी आउट कीजिए प्लीज।
You are working in report writing booklet, page number 14. I hope you are done till here. It is 11:45, 11:46 पे. I'll move to the next point. Don't worry, बस 2 minutes okay, मैं अभी enable कर दूंगी chat box. Eleven 46. अच्छा, अब एक बात देखें. If you go to page number 15, जरा अगला पेज देखें, page 15. इसके अंदर भी कुछ नोट्स हैं. यहाँ पे लिखा हुआ था सिंटेक्स ए. ये मैं आपको बताना भूल गई, आई एम सॉरी. सिंटेक्स ए का मतलब होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट. ये आपको अरेंजमेंट बताई गई ना, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा. सो अरेंजमेंट 1. इसको लिखने के दो तरीके हैं, दो फॉर्मूले हैं. सिंटेक्स 1, सिंटेक्स 2. Until now, I have only done one formula with you, one way of arranging it. यूं के एक तो आप behind the screen है. I can't read your face. ठीक है ना. तो what am I doing is, instead of doing syntax 2 right now, इसी के साथ जो continuation में है कि इसको लिखने का एक तरीका और है. I can do it in a minute, but I am just afraid कोई confuse ना हो जाए. तो instead of doing syntax B first, मैं कुछ सोच रही हूँ. मैं ये सोच रही हूँ, अभी आपको सेकंड ग्रामर टॉपिक कराया ना, तो बजाय आई टेक यू टू इसका फर्दर पार्ट, एक तो आई इनेबल चैट कि आप मुझसे पहले यहाँ तक की क्वेरीज पूछो, और ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो. हाँ, मैं फॉर्मेट डिस्प्ले कर रही हूँ. मीनवाइल यू आर राइटिंग कॉपिंग आउट फॉर्मेट, एंड वाइल यू आर कॉपिंग आउट फॉर्मेट, जिसको अब तक जो भी बात नहीं समझ आई है अबाउट फर्स्ट कंडीशनल्स, दे कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स. अगर मुझे आपके फीडबैक से लगा कि भाई ये तो आपको अच्छा समझ आ गया है, तो आई विल डू विद इट सिंटेक्स बी. हाउएवर अगर मुझे लगे कि नहीं तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है, तो मैं इसका सिंटेक्स भी अभी नहीं कराऊंगी. ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि और कंफ्यूजन हो. ओके. सो आप जाइए अपनी फॉर्मल रिपोर्ट्स की बुक में, ऑन पेज नंबर, जूम आउट करके आपको पहले दिखाऊं इस पे कितना काम है. ये है पेज 18. मैं पूरा पेज 18 जूम आउट कर रही हूँ. जस्ट अ मिनट. ये है एक्चुअली पेज 18. इस पे दो फॉर्मेट्स आने. तो इफ यू डोंट हैव इनफ स्पेस लाइक आई हैव ऑन माय पीडीएफ, तो आप एक फॉर्मेट पेज 18 पे लिख लो. अदर फॉर्मेट यू कैन राइट एट द एंड ऑफ योर बुक, जहां पे आपके पास एक पेज होता है माय नोट्स. ठीक है. इफ यू हैव इनफ स्पेस कि आपकी रीडेबिलिटी में कोई इशू ना आए, यू कैन डू इट ऑन पेज 18 बोथ फॉर्मेट्स. फिर मैं फॉर्मेट समझा दूंगी. रिलैक्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर कॉपिंग दिस फॉर्मेट. गिव दिस फॉर्मेट अ हेडिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड सजेशन अप्रूवल रिपोर्ट. तीन टाइप के रिपोर्ट हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सजेशन अप्रूवल एंड न्यूज रिपोर्ट. मैंने आपको लास्ट क्लास में तीनों के मतलब बताए थे. मैं रिपीट कर दूंगी अगर आप भूल गए. पहले फॉर्मेट कॉपी करें. नाउ गाइस, व्हाइल अदर्स आर कॉपीइंग फॉर्मेट इंक्लूडिंग यू, if you have any trouble with first conditional, can you let me know in chat box. बस गिव अप वाली बातें नहीं करना कि बस मुझसे नहीं होगा. सबसे हो जाता है. थोड़ा सा फोकस से सबसे काम हो जाता है. ठीक है. आस्क मी एनीथिंग अबाउट फर्स्ट कंडीशनल इन चैट बॉक्स, एंड ऑल्सो कॉपी आउट फॉर्मेट ऑन पेज 18. टाइम अपना वेस्ट नहीं करना.
मिटिगेट का मतलब है किसी मसले को कम करना। जैसे पॉल्यूशन दुनिया से खत्म नहीं हो सकती बट मिटिगेट हो सकती है, कम हो सकती है। परेशानियां जिंदगी से कम हो सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती, मिटिगेट हो सकती हैं। ठीक है, ये वर्ड आपकी रिपोर्ट राइटिंग बुकलेट में भी है, डिक्शनरी में मैं आपको बताऊंगी। चैट स्टॉप कर रही हूँ, 31 चैट्स है, पहले वो आंसर करूंगी। तब तक आई होप यू आर टेकिंग नोट्स ऑफ योर वर्क। आई एम आंसरिंग यू वन बाय वन विद योर नेम। अभी तो बताया अहमद, सिंटेक्स भी डिस्कस करने के लिए पहले ये तो देख लूं हाउ मच यू गाइस हैव अंडरस्टूड। सही है वसीम। ठीक है, मिटिगेट का मतलब मैंने बताया अभी आयशा। अभी क्लास कब खत्म होगी? यू कैन लीव इट जस्ट राइट नाउ। हु इज फोर्सिंग यू इन द क्लास? अपने टाइम पे खत्म होगी भाई क्लास। ओके ज़ैनब, वो मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। आयशा ये इसलिए गलत है क्योंकि इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अरीबा। जी अरीबा। क्या? अभी सिर्फ फर्स्ट कंडीशनल पे फोकस करो, सेकंड एंड थर्ड वी डोंट नीड। अच्छा नूरुलैन, योर क्वेश्चन इज कि हम इसके लिए जगह कुछ और यूज कर लें। नूरुलैन, एग्जामिनर को बहुत सारी वैरायटीज चाहिए, मैं आपको 4 वैरायटीज पढ़ाऊंगी। एक, आई हैव डन टुडे ट्रांजिशनल वर्ड। सेकंड, आई हैव डन इट जस्ट अ व्हाइल बैक वेयर आई हैव स्टार्टेड फर्स्ट कंडीशनल। जो तीसरी वैरायटी मैं आपको पढ़ाऊंगी लेटर नूरुलैन, उसका नाम सिंस वाले ही सेंटेंसेस है, विच वी टेक्निकली कॉल सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। ऐसा मैं अभी फॉर्मेट में ये बात रिपीट करती हूँ। मोहम्मद अली, एक दफा पैरा 3 एक दफा पैरा 4 में यूज करना है। पैरा 3 और पैरा 4, ओके। हादी, इट डिपेंड्स। दाऊद, आई टेल दैट फॉर्मेट के अंदर। जी जी, 2 फॉर्मेट्स हैं, दोनों डिफरेंट है, अभी एक्सप्लेन करूंगी। जी जी अयान अली, यू आर राइट। इनाम मुजफ्फर, एग्जैक्टली इनाम, आप विल भी यूज कर सकते हो, शुड भी यूज कर सकते हो, कैन भी यूज कर सकते हो, मस्ट भी यूज कर सकते हो। ये सब फ्यूचर लिखने के वर्ड है ना। आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट, आई शुड डू इट, ये भी विल की जैसे सब्स्टिट्यूट है ना। हाफिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये सिर्फ इफ से बनेगा। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज 50 ही वी हैव वैरायटीज, बट फर्स्ट कंडीशनल में इफ से ही बनाना है। हाँ रेयान, जब हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिपोर्ट करेंगे उसके अंदर ये वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि हम लिखेंगे स्कूल में पहले अलग प्रॉब्लम से या स्कूल में पहले चीजें डिफरेंट थी, तो उसमें प्राइमरीली यूज हो सकता होगा। अब्दुल आदिल सिद्दीकी, बिल्कुल परफेक्ट है, बीच में से कॉमा हटाओ क्योंकि तुमने इफ को सेंटर में लाए हो। ठीक है अब्दुल आदि, रेस्ट इज गुड। अरवा, यू आस्क इट इन द क्लास, इट्स नॉट एन आर्टिकल राइटिंग क्लास। आर्टिकल के लिए मैंने आपके कैंपस के अंदर, जब मैंने आपसे कहा है मैं एक्स्ट्रा सिटिंग करती हूँ क्वेरीज में, उसकी बात होगी। दिस इज नॉट आर्टिकल राइटिंग क्लास। वन सीक्वेंस ईशाल। गाइस आई थिंक सबको फर्स्ट कंडीशनल समझ आया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नजर नहीं आई। बस आई एम लेफ्ट विद 5 चैट्स। जी जी वानिया, दे ऑल आर सेम देयर। आयजा अदील, 2, एक पैरा 3 में एक पैरा 4 में। यस मुस्तफीन, दे कैन बी डिफरेंट। एक साइड पे स्कूल, दूसरी साइड पे स्टूडेंट, एक साइड पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एक साइड पे कम्यूटर्स। You are right, Abdul Rahman. Thank you for remembering this. You are right. अच्छा guys, before I go to the explanation of format, since I found out from feedback कि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, छोटी छोटी बातें पूछे, कितनी दफा यूज करना है, विल की जगह मस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो देवर बेसिक क्वेश्चंस। तो अब मैं पहले आपको इसका सिंटेक्स भी बता देती हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू डू इट पहले नॉन टेक्निकली और फिर उसकी टेक्निकल एग्जाम्पल। ठीक है,
एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब्दुल्ला और अली को दोबारा बुला लेते हैं, उन्हीं की बात से स्टार्ट करेंगे कि अब्दुल्ला इसका सेकंड अरेंजमेंट क्या होता है। लेट मी क्लीन माय स्क्रीन फर्स्ट, क्लियर माय स्क्रीन फर्स्ट। अच्छा, अब कोई बच्चा क्या मिस हो तो गई एक टाइप, क्यों करानी है सेकंड टाइप? आप क्यों भूल जाते हैं? एग्जामिनर वैरायटी पे मार्क्स देते हैं और एक्यूरेसी पे। इस तरह तो कोई बच्चा सिर्फ ट्रांजिशनल वर्ड्स करके कहे बस मिस बहुत हो गया, एक ही टाइप से मैं काम चला लूं। वी आर नॉट वर्किंग ऑन द काम चला लूं लेवल ना, वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग श्योर एवरीवन गेट्स द बेस्ट ऑफ द ग्रेड्स, एंड द बेस्ट ऑफ द ग्रेड्स आर ए स्टार्स एंड ए। मेहनत भी फिर ए स्टार वाले बच्चों वाली करनी है, और आप कर भी रहे हो, आप कंसिस्टेंसी शो भी करते हो। और अब देखो ना माशाल्लाह, हम जुलाई से कहाँ आ गए, है ना। जुलाई अगस्त से अगर आपने मुझे ज्वाइन किया, आई थिंक आपने भी नोट किया होगा आपकी ग्रामर वोकेबुलरीज यकीनन पहले से कुछ तो बेहतर हुई है ना। अच्छा अब्दुल्ला, और जल्दी से हम बुला लेते हैं अली को। अब्दुल्ला अली क्या बातें कर रहे थे? अब्दुल्ला और अली ने बात की थी, अगर क्लास जल्दी खत्म हुई तो हम आइसक्रीम के लिए जाएंगे। अब्दुल्ला अली थोड़ी देर पहले जो मैंने ड्रॉ किया था यही बातें कर रहे थे ना, हम आइसक्रीम के लिए जाएंगे। हाँ, इफ आई पुट इट इन अंग्रेजी तो इट बिकम्स, इफ our class gets off earlier today, comma, we will go for tea या आइसक्रीम। We will go for tea लिख रही हूँ, अब मुझे वो आइसक्रीम ना थोड़ा awkward लग रहा है, ठीक है। We'll go for tea। ये बात अब्दुल्ला और अली थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, when they were using first conditionals। अब इसका ये था सिंटेक्स ए, पहला तरीका लिखने का। अब आई एम टेलिंग इसका दूसरा तरीका, सिंटेक्स बी। सिंटेक्स बी ये है, लुक एट द उर्दू वर्जन ऑफ इट। हम ये ऐसे कहेंगे बात, हम टी के लिए जाएंगे, हम टी के लिए जाएंगे अगर क्लास जल्दी खत्म हुई। सो व्हाट डिड दीज टू गाइस डू हियर? बड़ा सिंपल सा काम किया है, जो आखिर वाली बात थी उसको शुरू में लिया है, शुरू वाली बात को आखिर में लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द सेकंड वर्जन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। We will go for tea if our class, comma हट जाएगा, if our class gets off earlier today. So technically what we have done, हमने पहले लिख दिया रिजल्ट और फिर हमने लिख दिया कंडीशन। We'll go for tea अगर जल्दी खत्म हुई क्लास, दैट्स इट। सिर्फ स्वैप किया, हमने सिर्फ स्वैप करते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसकी दोनों जगहों को चेंज कर दो, स्वैप कर दो, कामा हटा दो। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट बी। क्यों करना है? क्यों करना है भाई? मार्क्स के लिए करना है ना। पैरा 3 में इफ यू आर यूजिंग वन टाइप सिंटेक्स का एक टाइप, तो पैरा 4 में यू कैन यूज सिंटेक्स का दूसरा टाइप। एग्जामिनर इन चीजों को एक्नॉलेज करते हैं। आप कहोगे कब करते हैं, कहाँ करते हैं, किधर लिखा हुआ है? भाई मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। एंड सेकेंडली, majority of you, 90% of the students have already completed their narrative writing का paper, right? Only Bahadurabad campus is left. So tomorrow Bahadurabad campus भी narrative कर लेगा। Once you are done with that narrative, मेरे पास उसका 25 on 25 marks का examiner checked candidate response sheet है, which we got from one of our best students last year। तो उसका माशाल्लाह फुल मार्क्स था। उसके अंदर I'll show you structures का variety। इसी तरह इनफॉर्मल लेटर्स का जब मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगी पास पेपर, तो आई शो यू कि देखो वहां पे भी ये सब चीजें थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर्मल लेटर का मेरे पास कोई कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट नहीं है,
लेकिन जो है उसमें हम उन्हीं टॉपिक्स को देख लेंगे। अगर भाई 3 टॉपिक्स में मेरी बात मैच हो रही है तो बाकी में भी मैच होगी ना डियर। Let's look at now technically here. So what have I written? I mentioned here कि just swap कर दो subject plus future tense plus if plus subject plus present tense। ऊपर हमने एक एग्जांपल लिखी थी स्कूल के बारे में या ट्रैफिक पे। if concerned department takes necessary measures most of traffic issues will mitigate। ये बात अगर मैं यहाँ लिखूं तो क्या हो जाएगा? just swapping most of traffic issues will mitigate। अब यहाँ पे mitigate will क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने स्वैपिंग किया ना तो फ्यूचर टेंस पहले आ रहा है। मोस्ट ऑफ ट्रैफिक इश्यूज विल मिटिगेट इफ कंसर्न डिपार्टमेंट टेक्स नेसेसरी एक्शन। अच्छा अब देखो हम लोग जो होते हैं ना, आप मैं हम सबको अल्लाह ताला ने डिफरेंट ब्रेन दिया है, ठीक है। किसी के पास ए स्टार ब्रेन है, किसी के पास ए ब्रेन, बी ब्रेन, सी ब्रेन, डी ब्रेन। मसला नहीं है, अल्लाह की तरफ से। हम बात क्या कर रहे हैं? देखो अगर मुझे अपना आप का पता है ना वेयर डू आई स्टैंड, अगर मुझे लगता है कि यार अभी जो है ना मुझे डी लेवल पे हूं मैं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। मुझे लगे यार अभी मैं डी लेवल पे हूँ, ये सब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं यहाँ जंप करने की कोशिश नहीं करूंगी अभी, ठीक है, क्योंकि ये जंप इम्पॉसिबल है। अभी मैं सिर्फ जंप करूंगी एक ग्रेड अप। एक ग्रेड अप करने का मतलब है तुम अभी सिर्फ एक सिंटेक्स समझ लो जो पहला वाला था, दूसरे वाले को नोट कर लो पर फोकस नहीं करना, सिर्फ नोट बना लो। फोकस कब करना? कि जब आप मुझे रिपोर्ट लिख कर दोगे और आप देखो कि आपको बिल्कुल सही मार्क्स मिले, आपने जो भी फर्स्ट कंडीशनल ट्राई करे वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप आओगे एक लेवल अप कि हाँ भाई अब तक वट एवर आई डिड इट हैज गॉट मार्क्स, आई हैव नॉट लॉस्ट माई मार्क्स, आई एम गोइंग ऑन ट्रैक, इट इज द राइट टाइम, आई कैन ट्राई अनदर ऑप्शन। While I had given you access to chats, one of the students texted, सिर्फ एक बच्चे ने आउट ऑफ 32 चैट्स, सिर्फ एक बच्चे ने कहा मिस ये बहुत आसान है, आपने मुझे ये इनफॉर्मल लेटर्स में पढ़ाया था, मुझे याद है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जिसको लगे कि ये तो मुझे बहुत अच्छा आता है उसको दोनों टाइप करनी चाहिए और अपना कंसिस्टेंसी अपना ग्रेड मेंटेन करना चाहिए। जिसको बहुत मुश्किल लग रहा है बेटा एक टाइप तो कर लो, गिव अप ना करो, ठीक है। लेकिन नोट्स लिख लो ताकि whenever you think you have improved, whenever you think your revision is done, you can start trying another type। You are getting me here? Complete करें notes। जी बेटा कॉपी आउट करो ये नोट। अब आई विल टेक यू बैक टू द फॉर्मेट टू एक्सप्लेन यू वो फॉर्मेट विच यू वर राइटिंग अर्लियर। अभी तक वी हैव कंप्लीटेड 2 ग्रामर टॉपिक। आई हैड एन एम्बिशियस प्लान, मैं सोच रही थी सारे आज ग्रामर करा दूंगी, सारे फॉर्मेट्स करा दूंगी, लेकिन आई थिंक बेटर थिंग इज वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। सुकून से पढ़ते हैं, आपको बात भी समझ आनी चाहिए। फॉर्मेट्स पे लेके जाती हूँ आपको। प्रॉब्लम सॉल्यूशन और सजेशन अप्रूवल रिपोर्ट। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ, सिर्फ ध्यान, सारे पेन वेन छोड़ो, लीव योर कॉपी असाइड, सिर्फ मेरी बात समझो, ठीक है। There are two varieties of report, problem solution report and suggestion approval report।
I said leave all your work aside और सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुनो. You will understand the difference. पहले इनका difference समझो, फिर इसका format समझना, ठीक है? अब सपोज करो कि आपके स्कूल के अंदर आपको खुद ही से लगता है, यू आर द हेड ऑफ द काउंसिल, और आपको लगता है कि यार स्पोर्ट्स ना हमारे यहाँ बड़े अनपॉपुलर है, ज्यादातर बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड एज अ हेड ऑफ द काउंसिल या एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, तुम प्रीफेक्ट हो, तो आपको लगता है कि आपको पता है कि स्कूल में एक प्रॉब्लम है, आपको खुद ही से आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम ये है कि भाई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, खुद ही आपने ये बात नोटिस की कि इक्विपमेंट जो है इतने अपडेटेड नहीं है, या स्कैर्सिटी है. स्कैर्सिटी मतलब काफी अच्छे इक्विपमेंट है लेकिन बहुत ही कम है. या यू नोटेड कि आपके जो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स ब्लॉक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स ब्लॉक वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय कोर सब्जेक्ट्स के ब्लॉक्स. जैसे ही आपके स्पोर्ट्स का पीरियड आया, आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स के टीचर्स आके वो ब्लॉक्स यूज कर लेते हैं. तो यू हैव नोटेड कि दिस इज व्हाई मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लैक एनी इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. या आपको लगता है स्पोर्ट्स का ग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, या स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज, या कोच नहीं है, एक्स वाई जेड. तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स पता है. अच्छा, इस वक्त आप अपने ब्रेन से नहीं चलोगे, आपको ये इसका टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा. टेक्स्ट में से आप प्रॉब्लम्स पिक करोगे और फिर आप उनके सॉल्यूशंस लिखोगे. तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिपोर्ट के अंदर देयर इज अ प्रॉब्लम which already exists, you just highlight it and propose solutions. In the new syllabus, solutions are also text based. आपने रीड करना होता है टेक्स्ट और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, ठीक है? अब क्या क्या चीजों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपकी, जो मैंने बुक के अंदर बनाए हुए हैं, मैंने आपकी बुक के अंदर बनाए हुए हैं डिजिटल डिवाइड. आपकी बुक के अंदर मैंने एक टॉपिक बनाया है डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड में मैंने लिखा है कि भाई बहुत सारे टीचर्स टीच स्टूडेंट्स थ्रू जूम क्लासेस, ठीक है? बहुत सारे टीचर्स टीच थ्रू जूम क्लासेस, या बहुत सारी टीचर्स इन देयर क्लास इंटीग्रेट आईटी, लेकिन कुछ बच्चों के पास घर पे कंप्यूटर्स नहीं है, या इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या वो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं. सो डिजिटली दे आर डिवाइडेड. तो आई एम गोइंग टू find out problems for the text and then suggest how school can help those kids. So जहां पे प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिपोर्ट. अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट है सजेशन अप्रूवल रिपोर्ट. व्हाट इज सजेशन अप्रूवल रिपोर्ट? देखो, सजेशन अप्रूवल रिपोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल योर क्लास वांट्स टू गो फॉर अ फील्ड ट्रिप, या your class wants some extra classes, या your class wants a new coach, या your class wants to hold a bake sale day. क्या ये सब प्रॉब्लम्स हैं? क्या फील्ड ट्रिप पे जाना प्रॉब्लम है? क्या एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज होना प्रॉब्लम है? क्या न्यू कोच होना चाहिए प्रॉब्लम है? क्या बेक सेल प्रॉब्लम है? जवाब है नहीं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आप सजेशंस स्कूल को दे रहे हो. यू आर मेकिंग अ प्रपोजल. आप एक स्कूल को एक प्रपोजल सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा भी तो हो सकता है, एंड यू आर राइटिंग इट टू द मैनेजमेंट कि वो आपकी बात को अप्रूव करें. सो प्रपोजल फॉर अप्रूवल, इस टाइप की रिपोर्ट्स को कहते हैं सजेशन अप्रूवल रिपोर्ट. द गुड थिंग अबाउट बोथ ऑफ देम इज दोनों का फॉर्मेट सेम है. अब जितनी बातें मैंने लिखी है वो मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट फॉर्मेट का पेज नीट हो जाए और आपको समझने में कन्वीनियंस रहे, ठीक है? द क्लास विल एंड एट 12:15. बस ये वाला फॉर्मेट करके वी विल स्टॉप. सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा. 12:15 के बाद आई विल आंसर योर क्वेरीज अबाउट द टॉपिक, लेकिन तब तक फोकस मेंटेन रखें, फॉर्मेट समझिए, ध्यान से सुनिए. सो आई एम डन विद एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंस बिटवीन टू. अब सुनिएगा लिखा हुआ क्या है. लिखा हुआ है कि you are going to do it in 5 paragraphs, ठीक है? Para 1, Para 2, Para 3, Para 4, Para 5. क्योंकि ये रिपोर्ट है तो it will have a lot of headings. पहली हेडिंग का नाम होगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड हेडिंग सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3. लव सब हेडिंग नहीं है भाई, जो भी आपका रूब्रिक 1 जिस बारे में उस बारे में हेडिंग बनेगी.
जिस बारे में rubric 2 का फर्स्ट पार्ट है वो हेडिंग बनेगा। whatever you are trying to write here उस बारे में हेडिंग बनती है। ठीक है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? हम अपना सिचुएशन बताएंगे, हम प्रॉब्लम स्टेट करेंगे कि स्कूल के स्पोर्ट्स को क्या प्रॉब्लम है, या स्कूल के अंदर फील्ड ट्रिप क्यों जरूरी है, या स्कूल के अंदर बेक सेल की क्या इंपॉर्टेंस है। सो यू विल एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, सिचुएशन हाईलाइट करते हैं। डोंट वरी, रिपोर्ट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के सैंपल्स मैं आपको लिखवा दूंगी, सो यू कैन देन अंडरस्टैंड न्यूट्रल टोन क्या होती है। यानी कि हमने शिकायतों के स्टाइल में बात नहीं करनी होती, हमने इसको बड़ा न्यूट्रल फैक्चुअल स्टाइल में लिखना होता है। वो न्यूट्रल फैक्चुअल स्टाइल कैसे आपको आएगा? when I will do the format with you, sorry, when I will do the samples with you। ठीक है। बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होता है जैसे हमने फॉर्मल लेटर में देखा था। बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होगा ट्रांजिशनल वर्ड से। पहला रूब्रिक आता है पैरा 2 में, और रूब्रिक 2 को हम हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पैरा 3 में, एक पैरा 4 में। दैट्स इट। पैरा 5 पे आप हेडिंग लिखोगे कंक्लूजन। अगर आपने स्पोर्ट्स की कंप्लेन लिखा है तो आप रिक्वेस्ट करोगे कि स्कूल आपकी सजेशंस को कंसिडर करे ताकि स्टूडेंट्स को ग्रेटली बेनिफिट हो। अगर आपने लिखा है कि स्कूल फील्ड ट्रिप पे जाए तो आप बताओगे फील्ड ट्रिप पे ले जाने का कोई मेजर बेनिफिट। यू विल जस्ट कंक्लूड इट। कंक्लूजन का सैंपल और ओपनिंग का सैंपल हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। जस्ट बिलो दैट यू आर गोइंग टू राइट रिपोर्टेड बाय एंड डेट। रिपोर्टेड बाय एंड डेट सिग्नेचर भी कर दो तो अच्छी बात है। रिपोर्टेड बाय डेट एंड सिग्नेचर, सिग्नेचर मैंने पहले नहीं लिखा था, कैन यू प्लीज ऐड दिस वर्ड सिग्नेचर। This completes format for one type of report called the problem solution या suggestion approval report। ठीक है। Although I wanted to do more grammar topic, more formats, लेकिन वो overwhelming होगा आपको, क्योंकि दूसरा फॉर्मेट इसके बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे ग्रामर पॉइंट्स आज के ग्रामर पॉइंट से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। ऑल्सो वी हैव टू मार्क vocab। आपकी बुक के अंदर कुछ vocab है, सबसे पहले हम उस vocab में से शॉर्टलिस्ट करेंगे। एंड द vocab जो मैंने आपको डिक्शनरी से कराना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिक्शनरी से भी मार्क कराऊंगी। इसी के ऊपर अगर आप स्क्रॉल अप करें तो इसके अंदर बहुत अच्छे यूजफुल वर्ड्स और मीनिंग्स हैं जो आप वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट वर्ड एडवोकेसी। एडवोकेसी किसी बात को सपोर्ट करना या किसी सजेशन को रिकमेंड करना, स्ट्रांगली सपोर्ट करना, एडवोकेट करना। बूमरैंग किसी प्लान या एक्शन का रिकॉइल हो जाना यानी कि फेल हो जाना। कॉरेजेबल ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि करेक्ट हो सकते हैं। बेटा जो मैंने टिक किए हुए ना पहले वो वर्ड्स मार्क कर लें। डिस्पैरेज किसी चीज को बहुत कमतर या अनइम्पॉर्टेंट समझना। एफिकेशियस बड़े इफेक्टिव तरीके से किसी चीज को सॉर्ट करना, एफिकेशियस स्टेप्स लेना। दिस इज एफिकेशियस। ये आपकी बुक के अंदर प्रिंटेड है ऑन पेज नंबर 16। इंडोर्स किसी बात को सपोर्ट करना, यही सेम वर्ड इंडोर्स एडवोकेट से भी मैच होता है। एक्सपेडाइट किसी सॉल्यूशन को जल्दी से स्पीड अप करना, जल्दी से वो चीजों को सॉर्ट करना, जल्दी से मेजर्स लेना। जिंजरली केयरफुली किसी काम को करना। इनवैल्यूएबल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और यूजफुल। मिटिगेट रिड्यूस या किसी चीज के हार्मफुल इम्पैक्ट को लेसन करना, मिटिगेट करना, उसकी हार्मफुल इम्पैक्ट्स को कम करना। मॉड्यूलेट कंट्रोल करना, ध्यान करना, उन चीजों पे कंट्रोलिंग इम्पैक्ट होना, मॉड्यूलेशन। जूम आउट कर रही हूं, प्लीज आप मार्क करें। नेक्स्ट पेज के वर्ड्स भी मार्क करिए प्लीज मेरे साथ।
Onus, which is someone's duty or responsibility. Pivotal, extremely important. Pluralistic attitude, एक ऐसा आइडिया जो बहुत सारे लोग जिसको सपोर्ट करें. प्लूरल, बहुत सारे लोग. प्लूरलिस्टिक एटीट्यूड लोगों का इस बात की तरफ क्या है, बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं. इसका ऑपोजिट होता है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी. लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लो. हम कहना कि चंद ही लोगों को शिकायत है, चंद ही लोगों के लिए यू कैन यूज वर्ड माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी. प्रीकेरियस, कोई चीज जो बहुत ही रिस्की हो. प्रेडिकमेंट, प्रॉब्लम का सिनोनिम, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी का सिनोनिम प्रेडिकमेंट. रेटिफाई करना, किसी चीज को अप्रूव करना. स्क्रूटनी, बहुत ध्यान से स्क्रीनिंग करना, इंस्पेक्शन करना, क्लोजली स्टडी करना. दिस इज कॉल्ड स्क्रूटनी. The remaining good vocab words we are going to pick from dictionary. Remaining grammar topics we are going to do in next classes. Remaining formats we are going to do in next Recording classes. stopped. I've stopped the session here. Those who are clear और जिनकी कोई query नहीं है, they can choose to leave. जिनकी कोई queries है, मैं chat enable कर रही हूँ, आप पूछ सकते हैं. I will be available on chats till 12:25. 12:30 पे I have my AS English language session. Twenty-five chats हो गई हैं. 30 पे इसको freeze करूंगी. अगर मैं इसको जल्दी से आंसर कर देती हूँ तो I'll again allow chat option. ठीक है, let me see if I can quickly answer all of you. 36 chats हैं, ठीक है. I think they are enough for first. Okay, वानिया, इसका डेट का फॉर्मेट मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी, मुझे रिमाइंड करना याद से, सो आई कैन टेल इट टू अदर्स टू. सैयद फरहान, सेम हियर, म्याऊ म्याऊ. सैयदा इशाल, वोकैबुलरी का फर्स्ट पेज दिखा दूं? ओके, अभी दिखा देते हैं, 1 मिनट. ठीक है इशाल. ओके, अब्दुल हादी क्या चीज व्हाट्सएप की है, दोबारा मैसेज कर दो. ठीक है, अच्छा जी. नाउ आई एम आंसरिंग उमर अजीम. पेज 15 पे क्या था? लेट मी चेक. उमर अजीम, पेज 15. ठीक है उमर अजीम, पेज 15 फॉर यू. ईशा अहमद, आई एम आंसरिंग यू. सॉरी ईशा, मैंने सारे नोट्स लिखवा दिए. यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी एट द एंड ऑफ द क्लास के नोट्स लिखवा दें. हर स्क्रीन 4-4-5-5 मिनट्स फ्रीज हुई थी एंड आई कंटिन्यूसली केप्ट ऑन टेलिंग यू गाइस कि टेक नोट्स. अलीना, मैंने तो आज खुद ही कहा कि कंक्लूजन का कोई सा भी ट्रांजिशनल वर्ड यूज एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए. अयान, वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हैं. महक, महक मेरे ख्याल से तुमसे मिस हो गया, दोनों डिफरेंट थे. तुम अभी एक कर लो, दूसरा मुझसे क्लास में पूछ लेना. हाँ हाँ दाऊद, सीआईईज में भी भाई क्या हो गया? ये क्या रिपोर्ट मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए तो नहीं बताया ना माय डियर. सीआईईज में भी, रिपोर्ट्स में वी विल हैव हेडिंग्स. सत्तार, थोड़ा थोड़ा करके उसको याद करो, मम्मी को उसका टेस्ट दो, मम्मी से क्वेश्चन लें. मनाहिल, माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी मीन जस्ट अ फ्यू पीपल. ओके. रमीजा खान जी, रमीजा मैं पेज 14 डिस्प्ले कर देती हूँ. सारा नासिर,
नहीं नहीं, सारी प्रॉब्लम्स में से एक भी प्रॉब्लम नहीं लिखते। हम सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिस पे हमें क्विक मेजर्स की जरूरत है। मैंने आपको कहा मैं ओपनिंग का सैंपल लिखवाऊंगी। अफसर, डिमिनिश का मतलब और मिटिगेट का मतलब सेम नहीं है। ओके, आई एम आंसरिंग, जस्ट अ मिनट। वानिया, आई हैव आंसर्ड यू। आयशा सिद्दीका, आई एम आंसरिंग यू नाउ। हेडिंग्स कैसी लिखनी है, पूरी कैपिटल लिखनी है या नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल। अरे हाँ जौहर, वसीम, यू आर राइट, यू आर राइट। हो जाएगा, डोंट वरी। सबका होगा बेटा। सफिया, सफिया क्या? सफिया देखो, वो हर किसी का डिफरेंट है ना, मैं उसका ऑनलाइन में क्या जवाब दूं। अगर आपने बिल्कुल रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए नोट्स पे, लर्निंग पे, प्रैक्टिस पे। अब वो बच्चे जो मुझसे जुलाई से पढ़ रहे हैं, वो मेरे साथ बस अगर रेगुलर क्लासेस में भी हैं तो आई थिंक उनका प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। यस ईमान, वी डोंट यूज कामा ओवर देयर। तो सफिया, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस लेवल पे ना। आपने मुझे बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। जिन्होंने मुझसे जुलाई से पढ़ रहे हैं वो हर वीक मेरे साथ पढ़ रहे थे ना, तो उनको मेरी सजेशन डिफरेंट है, आपको मेरी सजेशन डिफरेंट है। सारा अहमद, आपको भी यही कह रही हूँ, यू आर ऑल्सो न्यू टू माई क्लासेस। आप लोगों को जो जो काम करा रही हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें, डिक्शनरी में से याद करें, फॉर्मेट्स याद करें। अरीशा इकराम, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हें रूब्रिक 2 नहीं पता। जब मैं सैंपल्स कराऊंगी, पूरी रिपोर्ट्स लिखवाऊंगी, तो मैं रूब्रिक 1 रूब्रिक 2 दिखाऊंगी भी एंड समझाऊंगी भी। ठीक है जी। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल चैट्स। किसा बतूल, आई एम आंसरिंग यू। सब हेडिंग विल बी सिंपल जी, जी एलिटरेटिव नहीं होती। अब्दुल्ला सबाहत, सॉरी अब्दुल्ला, किसी फ्रेंड से पिता नोट्स ले लीजिए। मुस्तफ़ा जाफरी, मुस्तफ़ा वो फर्स्ट कंडीशनल के लिए रिकमेंडेड है। इबादुल्लाह, स्टिग्मेटाइज का मतलब है रेपुटेशन खराब करना। कौन रह गया? अरवा। ओके, आई हैव आंसर्ड ऑल चैट्स, आई एम एनेबलिंग चैट्स अगेन। अगर किसी की कोई बात है, आई हैव 3 minutes विद मी। जल्दी से बता दे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अरवा, दो दो एग्जाम्पल्स एटलीस्ट करनी होती है। आई हैव 12 chats, आई स्टॉप चैट बॉक्स एट 20 chats। जी, आई एम फ्रीजिंग chats, they are already 20। Okay, I'm answering you guys with your name. You, I'm answering you. You can ask me in next class. Yes, Ayub. बिल्कुल बिल्कुल सिमरा, यूज कर सकते हैं। रयान बेग, यस रयान, हमने फर्स्ट कंडीशन, हमने ट्रांजिशनल वर्ड्स किए थे, सेम एज दोस वी हैव डन इन समरी राइटिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स। तुम वहां से कॉपी कर सकते हो। फातिमा, पैराग्राफ के शुरू में एक एक तो 3 हो गए, और बॉडी पैराग्राफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हुरैन शौकत, एक्चुअली यू आर ओनली डायरेक्टिंग द पर्सन। जैसे कि अगर ट्रैफिक इशू हो। यस सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है। यू हैव टू रीड लाइन। Vase, we are going to use it in our formal letters and in our
formal reports, formal emails, articles भी. स्क्रीन मैंने फ्रीज कर दी, सब कुछ तो पढ़ा दिया. अब I'm only answering queries और हम okay, I'm answering Sayyid Ayan Ali.